Welcome students. In today's class we are going to solve the numericals from the superposition of waves. जो इससे पहला लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि जो MCQs है उसके सॉल्यूशन देखे थे और कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे. In today's class we will start from the problem number 10. A wave of frequency 500 Hz is traveling with a speed of 350 meter per second. A. What is the phase difference between the two displacement at a certain point at time 1.0 ms means millisecond apart? B. What will be the smallest distance between 2 points which are 45 degree out of phase at an instant of time? So let's see in this problem. First, there are two values. One is frequency and another one is velocity. So the frequency is, we are denoting frequency by small n and that is given 500 Hertz and the velocity is 350 meter per second. In case number A, we have to find what is the phase difference between two displacement at a certain point at times 1.0 मिलीसेकंड अपार्ट. जो टाइम दिया है हमें वो दिया है 1.0 मिलीसेकंड. मिलीसेकंड मीन्स 10 to the power minus 3. So this is 1 into 10 to the power minus 3 second. In this case we have to find phase difference. यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? phase difference. Let's see. When wave is traveling at that time, we know one complete cycle, ये जो one vibration होता है उसमें one complete crest, one complete trough होता है. इसे हम one cycle कहते हैं, one vibration कहते हैं. तो उस समय यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो complete जो टाइम है उसे हम क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं. द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन दैट इज कॉल्ड द पीरियड दैट इज गिवन बाय कैपिटल T. एंड फॉर वन कंप्लीट दैट कैपिटल T एट दैट टाइम हियर द फेज डिफरेंस, जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है? ये हो जाएगा हाफ सर्कल पाई और ये हाफ सर्कल हो जाएगा पाई. सो इन दैट केस द फेज डिफरेंस दैट इज गिवन बाय 2 पाई. जो कंप्लीट वन साइकिल के लिए जो पीरियड लगता है उसे हम कैपिटल T से दिखाते हैं और ये हाफ साइकिल और ये हाफ साइकिल यानी वहाँ पे टोटल जो एंगल है फेज डिफरेंस है वो कितना होता है? 2 पाई. So when we have a capital T, that time phase difference is 2 pi. But here they are asking us when the time period when T is at instant T is 1 into 10 to the power minus 3 second. So here 1 into 10 to the power minus 3 second. That time what will be the phase difference? Okay, what will be the phase difference? यहाँ पे हमने कंपेयर किया है, ये है पीरियड है और ये है फेज डिफरेंस. तो इन फर्स्ट केस वी हैव T, then we have phase difference 2 pi, and in second case when we have a 10 to the power minus 3 second, that time we have to find the phase difference. Very easy problem. So now you can easily see. So when we divide this, let's we can write like this. Okay, now we are doing cross multiplication. That time it will be PD means ये जो फेज डिफरेंस है उसे मैंने ऊपर लिया है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई इंटू ये 1 into 10 to the power minus 3 ऊपर जाएगा
और जो नीचे आएगा वो होगा कैपिटल टी। वो क्या होगा? कैपिटल टी। ये जो 2 पाई बाई टी है उसे हम लिख सकते हैं 2 पाई n, बिकॉज 1 बाई टी दैट इज n। 1 बाई टी को हम क्या कहेंगे? 1 बाई टी को हम कहेंगे n कहेंगे। और ये जो मल्टीप्लिकेशन में है वो क्या है? 10 to the power -3। ओके, सो नाउ in next step you can put the value of n. What is the value of n? I will write here. ये जो हम फेज डिफरेंस के लिए फाइंड कर रहे हैं, अभी जो n की जो वैल्यू है, n क्या है? फ्रीक्वेंसी है, that is 500 hertz. So I will write like this: 2 into pi into 500 into 10 to the power -3. So 2 into 500 that will be 1000. 2 into 500 क्या होगा? 1000 होगा, और 1000 ही क्या होता है? 10 to the power 3 होता है। अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में पाई है और यहाँ पे 10 to the power -3 है, तो ये +3 और -3 ये कैंसिल होने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा, जो फेज डिफरेंस मिलेगा, PD मीन्स फेज डिफरेंस। PD क्या है यहाँ पे? फेज डिफरेंस। ये जो फेज डिफरेंस का वैल्यू हमें मिला है वो यहाँ पे है पाई। कितना मिला है? पाई। सो दिस इज अवर आंसर। सो वेरी इजी प्रॉब्लम। Okay, so this was our first case. Now in a second case, let's see what they are asking us. ये नंबर A का जो है हमारा आंसर हो चुका है 10 नंबर में, that is pi. So number B is, what will be the smallest distance between 2 points which are 45 degree out of phase at an instant of time? What will be the smallest distance? See here, जब वेव एक कंप्लीट वाइब्रेशन करती है तो यहां से यहां जाने के लिए, यहां से यहां जाने के लिए जो कंप्लीट यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं? लैम्बडा। जब लैम्बडा है तो यहां पे फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई है। तो हमें पूछा है कि क्या होगा डिस्टेंस, मीन्स डेल्टा एक्स क्या होगा जब वैल्यू होगा 45 डिग्री। कितना होगा वैल्यू? 45 डिग्री दिया है। 45 डिग्री उसे हम क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 6 लिख सकते हैं। पाई बाय 6, पाई का वैल्यू 180 है, 180 बाय 6, 6 3 जा 8, नो, पाई बाय 4 है। क्या है वो? पाई बाय 4। ओके, 4 4 जा 16, यस राइट। सी, हमें यहाँ पे पूछा है जब एंगल हमारा, जो फेज डिफरेंस हमारा 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री मीन्स जब पाई बाय 4 होगा, तब डेल्टा एक्स क्या होगा ये पूछा है। हमने स्टार्टिंग में अभी देखा, एक कंप्लीट जो साइकिल है, 1 क्रस्ट 1 ट्रफ, 1 वाइब्रेशन कह सकते हैं आप उसे, 1 कंप्लीट साइकिल कह सकते हैं, उसके लिए जो डिस्टेंस है उसे हम लैम्बडा कहते हैं। जब लैम्बडा है तब फेज डिफरेंस 2 पाई है, ये हाफ साइकिल, ये हाफ साइकिल, दैट विल गिव अस 2 पाई। लेकिन जब पाई बाय 4 होगा तब यहाँ पे डिस्टेंस कितना है ये पूछा है। लास्ट जो प्रॉब्लम था उसी टाइप से हम इसे सॉल्व करेंगे। वी हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हियर। वी आर गोइंग टू फाइंड दैट डेल्टा एक्स हियर। सो दिस डेल्टा एक्स विल गो हियर एंड ये जो पाई बाय 4 ये जो वैल्यू है ये ऊपर चला जाएगा। सो दिस विल बी लैम्बडा इनटू पाई बाय 4, ये 2 पाई है, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे।
जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का स्टेप आपको अच्छी तरह से यहाँ पे करना है। नेक्स्ट स्टेप, वी नो दैट v is equal to n lambda, therefore lambda is equal to v by n। ये जो लैम्बडा है उसका वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए अल्टरनेट फॉर्मूला क्या है, v by n है। तो ओ फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा v by n इंटू पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 पाई एंड हियर इज डेल्टा x। Okay, so in next step we'll write delta x is equal to v by n। n नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 2 पाई होगा और यहाँ पे ऊपर पाई होगा और नीचे यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। सी n को और 4 को मैंने नीचे लिया है। सो नाउ वी विल पुट द वैल्यूज, दिस पाई एंड पाई विल गेट कैंसल। v का वैल्यू हमारे पास है 350, जो n का वैल्यू है वो 500, जो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। See here, I will write like this, 350 divided by 4, 500 into 2, that is 1000, means that is 10 to the power 3। अभी हम 4 से यहाँ डिवाइड करेंगे, सो 4 8 जा 32, यहाँ पे 3 हो जाएंगे, 4 7 जा 28। Okay, 2 is remaining, so you can give 0 there. Here will be point, 4 5 are 20. So 87.5, ये 10 to the power 3, ये हो जाएगा -3। Okay, 87.5 into 10 to the power -3 मीटर। So this is our answer। ये है डेल्टा x का वैल्यू, क्या है, 87.5 मीटर। आप इसे, ये आंसर लिखने के बाद इसे छोड़ दे सकते हैं, इसके मार्क आपको मिल जाएंगे। ओके, अदरवाइज यू कैन राइट हियर 8.75। तो एक डिजिट से हमने कम किया है डेसिमल पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो 10 to the power -2 आ जाएगा। तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 8.75 सेंटीमीटर। ये बुक में दिया है आंसर 8.75 सेंटीमीटर। ये आंसर दोनों भी बराबर है। सो नो प्रॉब्लम, दिस इज आवर इजी सम, दैट इज सम नंबर 10। सो लेट्स सी नंबर 11। जो प्रॉब्लम नंबर 11 है उसे अब हम देखेंगे। A sound wave in a certain fluid medium is reflected at an obstacle to form a standing wave। Standing wave ही क्या होता है, stationary wave होता है। The distance between two successive nodes is 3.75 centimeter। If the velocity of sound is 1500 meter per second, find the frequency। See, a sound wave in a certain fluid medium is reflected at an obstacle to form a standing wave। तो एखादे फ्लूइड में, फ्लूइड क्या होता है, जो सब्सटेंस फ्लो होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। तो इस फ्लूइड में एक साउंड वेव एक ऑब्स्टैकल को इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है, वहां पे स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो रही है। स्टैंडिंग वेव ही क्या होती है, स्टेशनरी वेव होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पे मेंशन किया है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इज 3.75 सेंटीमीटर। जो नोड का डिस्टेंस दिया है, सो वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम नंबर 11। जो नोड का डिस्टेंस दिया है, नोड
और नोड में का जो डिस्टेंस दिया है वो कितना दिया है 3.75 सेंटीमीटर। उसे ही हम क्या लिखेंगे 3.75 10 to the power -2 मीटर। सी जो नोड में जो डिस्टेंस है बेसिकली वो क्या होता है डिस्टेंस लैम्बडा बाय डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नोड क्या होता है लैम्बडा बाय 2 होता है। सो दिस विल बी लैम्बडा बाय 2 दैट इज 3.75 10 to the power -2। इस इक्वेशन में हमने देखा कि जो हमें नोड और नोड में डिस्टेंस दिया है पर्टिकुलर वैल्यू को हमने कन्वर्ट किया। नोड और नोड जो डिस्टेंस है वो क्या है लैम्बडा बाय 2 होता है। तो इस नोड और नोड के डिस्टेंस को द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नोड दैट वी कैन राइट लैम्बडा बाय 2। So from this we are going to find first lambda, so this will be 2 into 3.75 10 to the power -2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 नंतर 3 7 जा 14 प्लस 1 15 so 2 3 जा 6 and that will be 1 so 7.50 10 to the power -2 मिला है हमें वैल्यू जो है लैम्बडा का वेवलेंथ का वैल्यू मिला है। वेरी इजी। नेक्स्ट जो वैल्यू हमें दिया है वो है वेलोसिटी का वैल्यू दैट इज 1500। वेलोसिटी का वैल्यू दिया है 1500 मीटर पर सेकंड। तो ये है लैम्बडा का वैल्यू और ये है वेलोसिटी का वैल्यू और हमें पूछा है फाइंड द फ्रीक्वेंसी। एन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है यहां पे एन का वैल्यू फाइंड करना है। हमें मालूम है रिलेशन जो है वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का v इज इक्वल टू एन लैम्बडा है। हमारे पास लैम्बडा का वैल्यू है v का वैल्यू है तो हम इजीली n का वैल्यू फाइंड करेंगे। सो दिस विल बी n इज इक्वल टू v बाय लैम्बडा। सो जो v का वैल्यू है वो क्या है 1500 और जो लैम्बडा का जो वैल्यू है वो क्या है 7.50 10 to the power -2। ओके तो इस इक्वेशन को जब हम लिखते हैं तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 1500 ये 7.50 है उसे हम लिखेंगे 750। तो हमने ये जो डेसिमल पॉइंट है उसे यहाँ 2 डिजिट आगे बढ़ाया है तो उसे हम -4 लिख सकते हैं। ओके सो इन दिस केस वी कैन डिवाइड दिस। सो ये जो मिलेगा ये डायरेक्टली डिवीजन 2 से हो रहा है 750 into 2 दैट विल गिव अस 1500। -4 ऊपर जाने के बाद हो जाएगा +4। ये हमें मिलेगी फ्रीक्वेंसी। कितनी है फ्रीक्वेंसी 2 into 10 to the power 4 हर्ट्ज 2 into 10 to the power 4 हर्ट्ज। ओके तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 into 10 to the power 4 हर्ट्ज। Otherwise, you can write 20 into 10 to the power 3 और उसे 10 to the power 3 क्या होता है किलो होता है। So this is किलो हर्ट्ज। So this is our answer। ओके तो ये हमारा आंसर हुआ है यहाँ पे 20 kHz। So let's see next one।
two sources, number 12, two sources of sound are separated by distance 4 meter. They both emit sound with the same amplitude and frequency, 330 Hz, but they are 180 degree out of phase. At what points between the two sources will the sound intensity be maximum? See here, two sources of sound are separated by distance 4 meter. एक यहाँ पे सोर्स है, लेट्स कंसीडर यहाँ पे एक सोर्स है, एक सोर्स यहाँ पे है, ओके तो ये दो सोर्सेस है, साउंड के सोर्सेस है. तो बेसिकली ओके साउंड के सोर्सेस है, तो इसलिए हम लेट्स सी हियर इज वन सोर्स एंड हियर इज वन सोर्स. ओके ये एक सोर्स है और एक सोर्स है. तो यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया है कितना दिया है, 4 मीटर दिया है. तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, दिस टू वेव्स आर आउट ऑफ फेज. आउट ऑफ फेज मीन्स क्या होता है, एक वेव इस तरह से स्टार्ट करेंगी, यहाँ पे उसका सेंटर होगा यहाँ पे, तो एक वेव जो है इस तरह से स्टार्ट करेंगी. तो ये दोनों का जो स्टार्टिंग है अपोजिट है, मीन्स ये आउट ऑफ फेज है, दोनों वेव्स आउट ऑफ फेज है. सो बेसिकली हियर एम्पलीट्यूड इज सेम, फ्रीक्वेंसी इज सेम, वेलोसिटी इज सेम. तो हमें फाइंड करना है मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए क्या वैल्यू होगा. सो इन दिस केस फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फ्रीक्वेंसी इज गिवन, दैट इज 330 हर्ट्ज. जो हम y1 के लिए जो इक्वेशन लिखेंगे वो होगा a sin ओमेगा t माइनस के एक्स. पहला इक्वेशन क्या होगा, y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स. जो दूसरा इक्वेशन होगा उसमें हम लिखेंगे a sin ओमेगा t प्लस के एक्स, और यहां पे प्लस हम लिखेंगे पाई. प्लस क्या लिखेंगे, पाई. सी हियर, ये दो इक्वेशन किस तरह से आए, बेसिकली दीज आर द प्रोग्रेसिव वेव. सो ये हमें मालूम है प्रोग्रेसिव वेव का एक फॉर्म है डिस्प्लेसमेंट में. तो हमने लिख लिया a sin ओमेगा t माइनस के एक्स. हमने देखा था प्रोग्रेसिव वेव में डिस्प्लेसमेंट इस तरह से लिखते हैं. लेकिन जो सेकंड वेव्स है वो हमने देखी है वो अपोजिट है. तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे माइनस है तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दैट वी नो. लेकिन ये पाई क्यों आया, प्लस पाई मैंने क्यों लिया है, प्लस पाई इसलिए लिया है कि यहां पे हमें बताया गया है कि जो फेज डिफरेंस है दैट इज गिवन, दैट इज पाई रेडियन. सो इसलिए हमने यहां पे पाई लिखा है. सो अवर सेकंड इक्वेशन इज ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई. साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. सी हियर, साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा. ये हमारे पास फॉर्मूला है. क्या है फॉर्मूला, साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. तो ये जब हम फॉर्मूला देख रहे हैं यहाँ पे साइन है, यहाँ पे पाई है और ये थीटा है. साइन पाई प्लस थीटा दैट विल बी साइन थीटा. ए तो यहाँ पे होगा ही, तो यहाँ पे हमें इक्वेशन जो मिलेगा ये मिलेगा ओमेगा टी प्लस के एक्स. सो इस तरह से हमारे पास एक है y1 और एक है y2. इनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2. सो नाउ y1 का वैल्यू क्या है, दैट इज a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और जो y2 का जो वैल्यू है वो है a साइन
ओमेगा टी प्लस के एक्स। यहां पे जो कॉमन है वो है ए है, तो ये इक्वेशन हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो यहां तक हमारे पास वैल्यू है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। सो यहां पे साइन पाई प्लस थीटा जो है वो क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। क्या होता है, माइनस साइन थीटा है। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो है y2 के लिए यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, साइन पाई प्लस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा, यहां इसलिए माइनस आया है। तो यहां पे क्या हुआ है, ये माइनस है। ओके, ये माइनस हम लेना यहां पे भूल चुके थे, तो यहां पे माइनस है और यहां पे भी माइनस है। दैट इज इजी। ओके, जस्ट माइनस साइन हम भूल गए थे, उसे आपको अच्छी तरह से मेंशन करना है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये फॉर्मूला भी हमारे पास है। तो अभी हमारे पास जो फॉर्म में साइन का इक्वेशन है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, लेट्स कंसिडर दिस टर्म एज सी एंड लेट्स कंसिडर दिस टर्म एज डी। देन वी कैन राइट this, there is a formula for this, sin c माइनस साइन d। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू cos c माइनस डी अपॉन 2। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ओके, तो क्या है फॉर्मूला, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू cos c माइनस डी अपॉन 2। जो हमारे पास इक्वेशन आया था साइन c माइनस साइन d के लिए, उसके लिए जो फॉर्मूला है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू cos c माइनस डी अपॉन 2। इस फॉर्मूला का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2, a को हम इधर लिख सकते हैं, लेकिन a इंटू 2 हो जाएगा 2a। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है cos c हियर, सो दिस इज आवर वैल्यू c एंड दिस इज आवर वैल्यू d। सो वी कैन राइट ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स डिवाइडेड बाय 2। ओके, यहां आप देख सकते हैं, यहां आप इसको इजी तरह से इस तरह से लिख सकते हैं, 2 के 2 और ये a के लिए a है। यहाँ पे a है, ये 2 जो फॉर्मूला में है, ये cos का वैल्यू c प्लस डी, ये वैल्यू कौन सा है, c का है, और ये कौन सा है, d का है। उसे आपको ऐड करना है फर्स्ट केस में, और फिर डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन दैट cos c माइनस डी अपॉन 2। सो हियर इट विल बी cos, आई होप यू कैन सी दिस। ओके, तो यहां पे हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास वैल्यूज है। फाइन, नाउ
Problem is easy, huh? But we have to take the proper formulae. Sometimes we mistake, sometimes we forget the minus plus, that we have to completely focus here. So y is equal to, this will be 2 into a, that is 2a. Okay. So यहाँ पे आप लिख सकते हैं cos, यहाँ पे हो जाएगा, see here, omega t minus kx plus omega t plus kx divided by 2 into cos, यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा t माइनस के एक्स, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ओमेगा t। यहाँ पे बहुत सारे मिस्टेक कर रहे हैं, ये माइनस और प्लस, ये माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय 2। नाउ इट विल बी 2a cos, दिस माइनस के एक्स प्लस के एक्स विल गेट कैंसल, तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये ओमेगा टी 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस, ये प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कैंसल, माइनस के एक्स दैट विल बी माइनस 2kx डिवाइडेड बाय 2। See here, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो टर्म है उसमें ये 2a cos, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा cos ओमेगा टी इंटू cos माइनस के एक्स। तो यहाँ तक हमें इक्वेशन मिला है। ओके, सी हियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशन मिला है इसमें इफ x इज इक्वल टू 0 हमने कंसिडर किया, x का वैल्यू यहां पे हमने 0 लिया, तो ये क्या हो जाएगा cos, ये पूरा 0 हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा, तो ये 0 से हम इसे मल्टीप्लाई, ये 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन दिस इक्वेशन व्हेन वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज 0, देन y विल आल्सो 0। x का वैल्यू 0 है तब y का वैल्यू भी हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तब आप देख सकते हैं जो हमारा वेव का इक्वेशन है बेसिकली इन दिस केस, यहां से वेव इधर, ओके लेट्स शो लाइक दिस, इस तरह से वेव स्टार्ट हो रही थी, यहां पे इस तरह से स्टार्ट हो रही थी, तो यहां पे x का वैल्यू जब 0 होगा तब y का वैल्यू भी क्या दिया है हमें, 0। तो बेसिकली जो भी हमारा फर्स्ट एंटीनोड होगा, अभी मैं यहां से इसे आपको क्लियर दिखने के लिए इस तरह से लिखता हूं, तो जो भी हमारा एंटीनोड होगा तो यहां पे होगा। हमें एक्चुअली क्या फाइंड करना है इस प्रॉब्लम में, at what points between the two sources will the sound intensity be maximum। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को साउंड का इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। यहां तो 0 है तो यहां मैक्सिमम हो जाएगा, सो दिस विल बी लैम्बडा बाय 4। ये क्या हो जाएगा, लैम्बडा बाय 4। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वहां पे क्या हो जाएगा, हमें नोड पॉइंट मिलेगा। उसके बाद जो एंटी नोड पॉइंट आएगा तो वहां पे हमें 3 लैम्बडा बाय 4 मिलेगा, बाद में हमें 5 लैम्बडा बाय 4 मिलेगा। इस तरह से हमें जो वैल्यूज है वो यहाँ पे वैरी करते हुए दिखेंगे।
तो जो वैल्यूज आएंगे हमारे पास वो होंगे प्लस λ/4 प्लस 3 λ/4. इन दिस वे वी विल गेट. तो क्या हो जाएंगे हमारे पास जो वैल्यू λ/4, 3 λ/4, बाद में 5 λ/4, इस तरह से हमारे पास वैल्यू मिलेंगे. कौन से? मैक्सिमम इंटेंसिटी के वैल्यू. मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होती है? जब एंटीनोड मिलता है. यहां पे फर्स्ट एंटीनोड मिला है λ/4, तो यहां आप जब जाएंगे तो यहां पे माइनस मिल जाएगा. तो हम इसे लिख सकते हैं प्लस माइनस λ/4 प्लस माइनस 3 λ/4 प्लस माइनस 5 λ/4. लैम्बडा का वैल्यू क्या है? पहले तो हमें मालूम होना चाहिए लैम्बडा फाइंड करने के लिए लैम्बडा का जो वैल्यू है, लैम्बडा इज इक्वल टू v/n, क्योंकि हमारे पास है v इज इक्वल टू n लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू हो जाएगा v/n. v का वैल्यू, साउंड का जो वेलोसिटी है अप्रोक्सीमेटली हम लेते हैं 330. जो फ्रीक्वेंसी है n का वैल्यू हमें मेंशन किया है वो है 330. तो लैम्बडा का वैल्यू कितना है? 1 मीटर है. तो इन दिस वे व्हेन वी आर पुटिंग हियर द वैल्यू of lambda, that is 1, then we have the first value that is plus minus 1 plus minus 0.25. Next that will be plus minus 0.75, then plus minus 1.25, and then plus minus 1.75. क्या किया है मैंने यहाँ पे? लैम्बडा का वैल्यू 1 मीटर है, 1 है, तो यहाँ आपको सिर्फ पुट करना है 1/4 क्या होता है? 0.25. तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा इस एक्सिस पे प्लस 0.25 और इस एक्सिस पे मिलेगा माइनस 0.25. Similarly, when we are putting here lambda is equal to 1, that time we will get 3/4 and that 3/4 will be 0.75. So in this way we will get the values. Okay, तो इस तरह से हमें ये values मिलेंगे. So this is our answer. So जो बाकी प्रॉब्लम है नेक्स्ट क्लास में लेंगे. Thank you very much.